Hello, hi everyone. Today we'll be doing the questions of differentiation, derivatives करेंगे chapter 5. Continuity वाला part we covered in the last previous video. Today we'll be taking the questions of differentiation. ठीक है, I've normal differentiation by this time everyone knows. आपने 11th में भी सीखी होती है, but in this video I'm going to keep those questions which have come in previous board year exams स्लाइटली डिफरेंट, थोड़े से ट्रिकी हैं और मैंने वही क्वेश्चंस ही इस वीडियो में रखे हैं. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज if fx is equal to x plus 1, I have to find derivative of f of x. fx आपको आपने इफ यू हैव डन द फर्स्ट चैप्टर आपको पता होगा एफ ऑफ एफ एक्स क्या है. दिस इज अ कॉम्पोजिट फंक्शन. पहले तो हमें ये फंक्शन निकालना पड़ेगा टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव. तो पहले ये फंक्शन निकालने के लिए प्लीज रिमेंबर आपको क्या करना होता है. एफ ऑफ एफ एक्स और आपका एफ एक्स क्या है, एक्स प्लस वन है, राइट. एक्स प्लस वन है. तो अब दिस द वैल्यू ऑफ दिस इज गोइंग टू बी व्हाट. आपको इसमें x की जगह यू हैव टू पुट x प्लस वन. आपको कॉम्पोजिट फंक्शन, इफ यू नो हाउ टू फाइंड आउट कॉम्पोजिट फंक्शन, फिर उसके बाद इसका डेरिवेटिव बहुत इजीली हो जाएगा. f ऑफ एफ एक्स, हमें f ऑफ एफ एक्स निकालना है. एफ एक्स आपका क्या है, x प्लस वन है. आई एम गोइंग टू कीप x प्लस वन इन द ब्रैकेट. अब फंक्शन x प्लस वन निकालना मीन्स in place of x I have to substitute x plus 1. ठीक है, तो x plus 2 आ गया. now the derivative of x plus 2 is going to be d by dx of x, d by dx of 2, which is equal to 1 plus 0 1. ठीक है, हमने ये बहुत easy question है if you know how to find the composite functions. Now coming to the next question, if y is equal to x modulus x, आपका अगेन हमें पहले फंक्शन के साथ प्ले करना पड़ेगा. ठीक है, हमको फंक्शन निकालना पड़ेगा फिर डेरिवेट करेंगे. इफ y इज इक्वल टू x मॉडुलस x, इफ x इज लेस देन 0. अब आपको पता होना चाहिए x इज लेस देन 0, तो ये मॉडुलस क्या हो जाता है. यू नो दैट मॉडुलस फंक्शन क्या होता है. The value of modulus function is minus x and x minus x when x is less than 0, x when x is greater than equal to 0. ठीक है, तो अब आपको dy by dy is equal to x into minus x, y is equal to minus x square. डेरिवेट करिए minus 2x. x square का डेरिवेटिव क्या होता है, twice of x minus 2x. So the value of dy by dx is going to be minus 2x. यहाँ पे हमने we have used the property d by dx xn n x n minus 1. ठीक है, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x 2 minus 1. तो इतनी बेसिक थिंग्स यू शुड नो बाय नाउ. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the differentiate tan inverse 1 plus cos x by sin x with respect to x. Now we have to simplify this function first to derivate. ठीक है, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में we learn to simplify the functions. जैसे tan inverse 1 plus cos x by sin x. tan inverse 1 plus cos x क्या है, 2 cos square x by 2. You know that 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta. So 1 plus cos x is equal to 2 cos square x by 2. Theta की जगह you are going to do x by 2. And sin x is going to be 2 sin x by 2.
cos x by 2. Cancel, cancel. Tan inverse cos x by 2 by sin x by 2. अब ये क्या है? tan inverse cot x by 2. ठीक है, अब इस cot को हम कैसे लिख सकते हैं? We can write this as tan 90 minus theta. This is going to be pi by 2 minus x by 2. The value of this is going to be pi by 2 minus x by 2. Now I have simplified it. मैंने simplify कर लिया. Now I will find the derivative of this, because मेरा tan inverse 1 plus cos x by sin x is equal to pi by 2 minus x by 2. मुझे अब इसे derivate करना है. This is equal to ठीक है 0 minus 1 by 2. Minus 1 by 2. ठीक है. So if you simplify the function first, आपको बहुत easy हो जाएगा to find out the derivatives. Differentiate करना बहुत easy हो जाएगा. I had to differentiate with respect to x. ठीक है, the final answer that is equal to minus 1 by 2. And please, my request या my advice, जितने भी आपके ये होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जो आप उसे पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए अगर हो सकते हैं तो. इज दैट क्लियर? सो देन डिफरेंशिएट, it will be easier for you to solve the question. Coming to the next question, I have to find dy by dx at x is equal to 1. थोड़ा सा डिफरेंट है. हमें अब फाइनल वैल्यूज में हमें dy by dx निकालना है. कहाँ पे? x is equal to 1 and y is equal to pi by 4. और हमारे पास फंक्शन I mean an equation has been given to you. Now differentiate both sides with respect to x. d by dx of sin square y plus d by dx of cos xy is equal to dy by dx of k. Now you know that ये y का फंक्शन है, sin square y है, मतलब कि चेन तो लगेगा. तो let me just write the chain here. और this इसको देखिए dy by dx of cos xy, इसमें भी you will have to use the chain here. पहले जिसको डायरेक्टली चेन लगानी आती है प्लीज, और डेरिवेटिव ऑफ k इज 0. डायरेक्टली भी आप लगा सकते हैं चेन. ठीक है, अब let me shift it here so that I get enough space. ठीक है, अब d by dy of sin square y, you know that derivate कैसे करेंगे? 2 sin y, पहले xn का लगेगा और फिर sin को डेरिवेट करेंगे cos y. cos xy इसको डेरिवेट करेंगे, it is going to be minus sin xy. And here if I am going to derivate x dy by dx, ठीक है, y आपको इसमें uv रूल लगाना है. You have to use uv rule here. u first out, then derivative of v out, and then derivative of x. तो dx by dx 1 होगा. तो अब इसे करिए
I'm opening the bracket here. ठीक है, लेट मी कीप जो dy बाई डी एक्स है कॉमन ले लेते हैं, and taking the term to right hand side here, dy by dx, you know that 2 sin y cos y किसके इक्वल होता है? sin 2y, आइडेंटिटी sin 2 थीटा की, take it to the right hand side, sin 2y minus x sin xy. ठीक है, तो दिस वॉज एन इक्वेशन जहाँ पे हमको डायरेक्टली फंक्शन नहीं दे रखा था, एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में नहीं दे रखा था, तो सर्टेनली हमको इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए वी विल हैव टू यूज दी चेन्स हेयर, जहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए लगती हैं. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नहीं, अभी एट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू पाई बाय 4, x is equal to, now I have to find further solve it at x is equal to 1, y is equal to pi by 4, मुझे ये differentiate करना है. तो अब इसके लिए what I am going to do, मैं I am going to take this dy by dx जो हमने find out किया है, x is equal to 1 and y is equal to pi by 4. Let me find out the value by substituting. अब बस substitute ही करना है. So it will come out to be pi by 4 sin pi by 4, sin 45 is 1 by root 2. यहाँ पे यूज करेंगे sin 90 माइनस sin pi by 4. ठीक है, ये देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, बस कैलकुलेशंस आर लेफ्ट. if you want to further calculate it, simplify करना, प्लीज आप LCM लेके फर्दर सिंप्लीफाई करिए इसको. सो पाई बाय cancel, this is going to be the required answer. ओके, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है. कुछ नहीं किया, जैसे आप डेरिवेट करेंगे यू हैव टू सब्सटीट्यूट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू पाई बाय 4 और उसे सॉल्व कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब cos x इज इक्वल, देखिए cos x y इज इक्वल टू cos y x, y रेज टू पावर x, देन फाइंड dy बाई dx. आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया हो, अगर फंक्शन की पावर x में हो या y में हो, इट इज़ बेटर टू टेक log ऑन बोथ साइड्स. तो इन दिस क्वेश्चन you have to take log to solve such questions. जब भी कोई भी फंक्शन एफ एक्स रेज टू पावर जी एक्स या जी वाई के फॉर्म में हो, आप टेक लॉग. नाउ लॉग लेने का ये है कि यू हैव टू टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, तो हेयर वी आर गोइंग टू टेक लॉग
both sides. आप इधर log लेंगे तो it will come out x log cos y. आपको log की प्रॉपर्टी पता होगी. I'll write it down here. Log m raised to power n will be equal to n log m. तो मैंने वही यूज किया है इसमें. अब taking differentiating with respect to x on both sides. ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं x से. तो देखिए यहाँ uv रूल लग जाएगा. पहले y d by dx ऑफ फिर log cos x dy by dx. ऐसे ही x d by dx ऑफ ठीक है, ये आपने कर लिया, डेरिवेट कर लिया. अब आप देखेंगे इसको डेरिवेट करेंगे क्या होगा. 1 बाय cos x इंटू माइनस साइन एक्स. इसको डेरिवेट करेंगे x 1 बाय cos y इंटू माइनस साइन y dy बाय dx. log का डेरिवेट d बाय dx ऑफ log x क्या होता है. 1 बाय x होता है. ठीक है, तो 1 बाय cos y इंटू माइनस साइन y dy बाय dx चेन लगा है प्लस log cos y. ठीक है, आपकी ये इक्वेशन आ चुकी है. लेट अस फर्दर सॉल्व इट. अब हम क्या करेंगे. वी आर गोइंग टू टेक dy बाय dx ऑन वन एंड साइड. एक ही साइड पे रख लेंगे. y माइनस y tan x प्लस log cos x इज इक्वल टू माइनस x tan y log cos y. ठीक है, लेट मी टेक dy बाय dx वाले टर्म्स एक तरफ on one side, rest of the terms on other side, right hand side. अब इसमें से you can take dy by dx common. log cos x plus x tan y is equal to log cos y plus y tan x. Clear? Clear. Now, nothing, one more step left. एक रह गया, एक ही स्टेप रह गया. dy by dx उधर जाके आप डिवाइड कर दीजिए. This is going to be your answer, required answer, dy by dx. वही आपको you had to find out. आपको वही find out करना था. Okay, coming to the next question. No, this is one of my favorite questions. इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे. ये स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग इमीडिएटली. बिगिनिंग में डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर देते हैं. प्लीज़ डोंट डू दैट. पहले फंक्शन को सिंपल बना लीजिए. जैसे आप फंक्शन को सिंपल बना लेंगे वैसे डिफरेंशिएशन बहुत इजीली हो जाएगा. जैसे x
root 1 plus y is plus 1 by 1 plus root x is equal to 0. हम क्या करते हैं, ये वाली टर्म को राइट हैंड साइड ले गए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स, हमने स्क्वायर कर दिया. ठीक है, इज इक्वल टू 0. इसमें भी हम फैक्टराइज कर रहे हैं, वी आर फैक्टराइजिंग. इसमें x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इसमें से एक्स वाई वी हैव टेकन द कॉमन. अब x माइनस वाई कॉमन ले लीजिए. ठीक है, अब x माइनस वाई कांट बी इक्वल टू 0. दिस x माइनस वाई कांट बी इक्वल टू 0. ये या तो ये 0 के इक्वल है, या फैक्टराइजेशन व्हेन वी फैक्टराइज, या तो एक ये फैक्टर 0 के इक्वल है, आइदर दिस फैक्टर और दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0. अब नाउ this can't be the case, you rejected, because with this x will come out to be equal to y. इस केस में x is equal to y हो जाएगा, which is not the case. यहाँ पे given नहीं है, you straight away reject this case. अब आ जाइए इस केस में x plus y equal to 0 है, माइनस x, y कॉमन लिया, अब डेरिवेट करिए. यू डेरिवेट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. dy बाय dx, v डेरिवेट करेंगे -1, डेरिवेट करेंगे u बाय v रूल लगा है, dy by dx will be equal to -1 by 1 plus x whole square. यही प्रूफ करना था. Hence proof. ठीक है, coming to the next question, let us do the next question. अब this question is slightly different from what we did in the earlier questions. Y is equal to sine inverse 6x 1 minus 9x square. ऐसे क्वेश्चंस में स्ट्रेट अवे डेरिवेट नहीं करिए, मेक द फंक्शन सिंपलर. जैसे आप क्या करिए, यू टेक 3x इज इक्वल टू साइन थीटा. आप 3x साइन थीटा के इक्वल ले लीजिए. y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 into 3x 1 minus 3x whole square. ठीक है, मुझे थोड़ा सा आइडिया इससे हो जाता है कि आई शुड टेक दिस बिकॉज स्क्वायर रूट, वी विल गेट रिड ऑफ स्क्वायर रूट. y is equal to sine inverse, if I take 3x as sine theta 1 minus sine square theta, y is equal to sine inverse 2 sine theta root cos square theta, y is equal to sine inverse 2 sine theta cos theta. अब ये किसके इक्वल हो जाता है, साइन 2 थीटा के इक्वल हो जाता है. 2 साइन ए कॉस ए किसके इक्वल होता है, साइन 2a के इक्वल होता है. नाउ दिस इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2 थीटा. साइन इनवर्स ऑफ साइन क्या होता है, 2 थीटा हो गया. थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा फ्रॉम हेयर साइन इनवर्स 3x विल बी इक्वल टू थीटा.
अब सिंपल फंक्शन बन गया, अब डेरिवेट करते हैं. dy by dx will be equal to 2 d by dx of sin inverse 3x. इसका डेरिवेट करेंगे, व्हाट इज गोइंग टू बी द केस? 1 बाय रूट, ये हो जाएगा d बाय डी एक्स, चेन लगेगा, रूट 1 minus 9x square into 3. So answer is going to be 6 by root 1 minus 9x square. ठीक है, this is going to be the answer for this question. dy by dx is equal to 6 by root 1 minus 9x square. Coming to the next question. Now again we are getting the composite function here. We have to find the derivative of composite function f of gx. f of gx. You can write this as f gx. आप ऐसा लिख सकते हैं, f आपका gx क्या है? x माइनस 7 है. अब अगर fx आपका x प्लस 7 है तो ये इसकी वैल्यू क्या होगी? रिप्लेस x बाय x माइनस 7. x की जगह x माइनस 7 सब्स्टिट्यूट करना है आपको. विल बी गेटिंग द आंसर एज x. तो एफ जी एक्स आपका x है. अब आपको इसका डेरिवेट करना, यू हैव टू डेरिवेट दिस. d by dx of x is going to be equal to 1. तो दिस इज द केस ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस. कॉम्पोजिट फंक्शंस है f of g, फॉग x निकालना है तो f g x निकालेंगे. g x का वैल्यू इज x माइनस 7. f of x minus 7 is going to be very simple function. x की जगह आप क्या पुट करेंगे? x minus 7 पुट करेंगे. सिंप्लीफाई करिए और उसको डेरिवेट करिए. आंसर इज 1. Okay, coming to this, the next question. Such functions are called parametric functions. हमारा x भी function of t है, y भी function of t है. तो अब इस केस में हम x को भी डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे, y को भी डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे. dx by dt निकालेंगे, dy by dt निकालेंगे. नाउ लिसन टू मी, पैरामीट्रिक फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. तो आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको dy by dx निकालने के लिए यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. आप इसमें क्या करेंगे? dx by dt, a बाहर लीजिए, आपका uv रूल लग जाएगा. u बाहर, डेरिवेटिव ऑफ sin t प्लस cos t, डेरिवेटिव ऑफ et. ये क्या है? cos t माइनस साइन t. साइन का डेरिवेटिव cos, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन. et. आप इसको मल्टीप्लाई करिए. ठीक है, अब यू प्लीज चेक ये किसके इक्वल है. इफ आई सी, इसमें से माइनस इफ आई टेक कॉमन, ये साइन टी माइनस कॉस टी हो जाएगा. और ये साइन टी प्लस कॉस टी है. एज यू कैन सी दिस इज इक्वल टू व्हाट? माइनस वाई. ये माइनस वाई के इक्वल है. और ये किसके इक्वल है?
x के इक्वल है, तो दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई, dx बाई dt इज इक्वल टू x माइनस वाई। ठीक है, आप प्लीज चेक करिए ये y और ई टी साइन टी माइनस कॉस टी इक्वल है, सेम है, तभी मैंने उसकी जगह माइनस वाई और इसकी जगह x सब्स्टिट्यूट कर लिया है। लेट मी फाइंड आउट सिमिलरली dy बाई डी टी, मैं dy बाई डी टी फाइंड आउट करती हूँ एंड आई एम गोइंग टू टेल यू वो x प्लस वाई ही आएगा, बिकॉज हमने यही प्रूव करना है। ऐसे ही होगा, यूवी रूल लगेगा, a बाहर लीजिए, d बाई डी टी ऑफ ई टी साइन टी माइनस कॉस टी, यूवी रूल लगाइए इफ यू रिमेंबर, प्रोडक्ट रूल, प्लस साइन टी माइनस कॉस टी डी बाई डी टी ऑफ ई टी। ठीक है, अब इज इक्वल टू ए, डेरिवेटिव ऑफ साइन टी क्या होगा, कॉस टी प्लस साइन टी, माइनस कॉस टी का डेरिवेटिव प्लस साइन टी होगा, ई टी। ओपन द ब्रैकेट्स हियर, ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, x, दिस इज इक्वल टू व्हाट, y, x प्लस y, तो dy बाई डी टी आपका x प्लस y के इक्वल है। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट dy बाई dx, एज यू कैन सी dy बाई dx will be equal to dy by dt divided by dx by dt। dy by dx क्या होगा, dy by dt divided by dx by dt, dy by dt आपका x plus y है और dx by dt आपका x minus y है। So this is going to be the value of dy by dx, hence proved. Coming to the next question, here x is equal to cos t plus log tan t by 2, y is equal to sin t, again पैरामेट्रिक फंक्शन, लेकिन अब पैरामेट्रिक में आपको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो करना है। अब प्लीज रिमेंबर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आपका, अगर आप डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर देंगे, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, ऐसा अगर आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन में, दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग, दिस मेथड इज इनकरेक्ट, प्लीज ऐसा नहीं करिएगा। आप सिंगल डेरिवेटिव dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी तक कर सकते हैं, उसके बाद देर इज गोइंग टू बी स्लाइटली डिफरेंट प्रोसीजर, तो प्लीज ध्यान रखिए, यू डोंट डू, ऐसे नहीं करिए। ठीक है, तो लेट अस फाइंड आउट फर्स्ट dy बाई डी एक्स, पहला स्टेप करते हैं, लेट अस फाइंड आउट dy बाई डी एक्स। आपका x इज इक्वल टू कॉस t प्लस लॉग tan t बाई 2 है, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू व्हाट, माइनस साइन t, इसको डेरिवेट करेंगे 1 बाय tan t बाई 2, और tan का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर इंटू हाफ। ठीक है, माइनस साइन टी प्लस ये हाफ कर लीजिए, ठीक है। अब इसको करते हैं कॉस स्क्वायर, मैं सिंप्लीफाई कर रही हूं, कैंसिल। ठीक है, tan को आई हैव चेंज इनटू साइन बाय कॉस, ठीक है, और
इसको कॉस स्क्वायर में कर दिया, माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन टी बाय 2 cos t by 2. As you know, I'm going to use the identity here. मैं identity use करूंगी. This is going to be equal to what? Minus sin t plus 1 by sin t. Because you know that 2 sin theta cos theta is equal to sin 2 theta. ये sin 2 theta के equal है. तो it is going to be equal to what? Minus sin square plus 1 dx by dt. ठीक है, dx by dt is equal to cos square t by sin t. Next I have y is equal to sin t. तो dy by dt हम फाइंड करेंगे cos t. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, dy by dx करना है. dy by dt by dx by dt. dy by dt आपका किसके इक्वल है, cos t के इक्वल है. dx by dt आपका किसके इक्वल है, cos square t by sin t के इक्वल है. So this is going to be what? आप करिए, this is going to be equal to tan t. तो dy by dx आपका tan t के इक्वल है. After this approach is going to get changed here. थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. dy by dx is equal to tan t you have found out. Now let us do second step where I have to find d square y by d square y by dx square. So my dy by dx is what? Tan t. Differentiating again with respect to x, d square y by dx square, d by dx of tan t. अब प्लीज चेन लगेगा. ठीक है, ये क्या हो जाएगा, sec square t. एंड एज यू कैन सी मेरा dx by dt आपका ये था cos square t by sin t. तो dt by dx क्या होगा, प्लीज चेक, dt by dx क्या होगा इसमें, sin t by cos square t. अब प्लीज पुट करिए, sin square t by sin t by cos square t, sin t by cos square t. ठीक है, अब प्लीज हमको वी हैव टू फाइंड द डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एट t पाई बाय 4, एट t इक्वल टू पाई बाय 4. cos square पाई बाय 4. ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, sec square पाई बाय 4 इज √2 स्क्वायर, 1 by √2, 1 by √2 स्क्वायर. सॉल्व करिए इसको, 2 इंटू, इसे सॉल्व करना है, ये सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 1 by √2 इंटू 2. 2√2 is the required answer. So in such questions, parametric functions where we have to find second order derivative, आप प्लीज क्या करेंगे, स्टेप 1 आप dx by dt dy by dt करेंगे फाइंड आउट. स्टेप 2 आप dy by dx फाइंड आउट करेंगे. हाउ, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय डिवाइडिंग dy by dt एंड dx by dt. ठीक है, स्टेप 3 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप कैसे करेंगे, आप dy by dx को डबल डेरिवेट करेंगे, अब डबल डेरिवेट करेंगे इंटू dt by dx कर देंगे, इंटू dt by dx कर देंगे. ये इसके लिए आपको इसे ही डेरिवेट करना है, यू हैव टू डेरिवेट स्टेप 2.
ठीक है, आपको इसे ही डेरिवेट करना है, चेन लगा देना है इनटू डी टी बाई डी एक्स का, ठीक है। और ओके, if sin y is equal to x cos a plus y, I have to find dy by dx, ठीक है। अब sin y is equal to x cos a plus y. Let me take the modify the function somewhat, ठीक है। मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया है, differentiating both sides with respect to x, d by dx of अब देखिए u by v रूल लगेगा, sin y minus d by dx of cos a plus y, cos स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। cos a plus y, sin y का क्या होगा, cos y माइनस साइन y, cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन a प्लस y, ठीक है। और ये यहाँ पे ये चेन लगेगा, दिस इज गोइंग टू बी dy by dx, dy by dx is equal to 1. Listen to me, when I am derivating this by u by v रूल लगा रही हूँ, लेकिन मैं डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू y कर रही हूँ, तो इंटू डी वाई बाई डी एक्स करना पड़ेगा, बिकॉज आपको चेन लगाना है। यू नो नाउ कि कैसे चेन लगाना होता है, बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1. अब इफ आई टेक लुक एट द न्यूमरेटर हेयर, ये न्यूमरेटर पे ध्यान दे, ऊपर देखिए कॉस ए प्लस बी ए प्लस वाई कॉस वाई प्लस साइन ए प्लस वाई साइन वाई, आपका ये किसके इक्वल है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसके इक्वल होगा, कॉस ए माइनस बी के इक्वल होगा। दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। अब आपका इस केस में कॉस ए प्लस वाई है, बी आपका माइनस वाई है, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू कॉस ए, आपका तो न्यूमरेटर कॉस ए के इक्वल होगा। प्लीज नोट, we are using the identity which we learnt in class 11th, cos a cos b plus sin a sin b is equal to cos a minus b, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, न्यूमरेटर एज आई हैव टोल्ड यू इट इज इक्वल टू cos a dy by dx is equal to 1, dy by dx किसके इक्वल होगा, cos स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। आप फंक्शन को पहले क्या करिए, cos a प्लस वाई को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाइए, sin y बाय cos a प्लस वाई इज इक्वल टू x। अब आप क्या करिए, यू डेरिवेट, लेफ्ट हैंड साइड को डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो चेन लगेगा dy बाय dx, ठीक है। तो अब न्यूमरेटर में आपका cos a cos b प्लस sin a sin b आइडेंटिटी से cos a माइनस b बन जाएगा, तो cos a आ जाएगा। So you are going to get cos a by cos square a plus y dy by dx is equal to 1. राइट हैंड साइड लेके जाइए, आपका dy by dx वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप 2, what he's asked us to do, he has asked us to do
find d, show that dy by dx is equal to cos a when x is equal to 0. ठीक है, आपको x 0 है तो dy by dx किसके इक्वल होगा, cos a के इक्वल होगा. you know that when x is equal to 0, देखिए आप sin y is equal to x cos a plus y. when x is equal to 0, तो sin y is equal to 0 into cos a plus y. sin y किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा. अब sin y 0 के इक्वल है तो वो बेसिकली sin 0 होगा. तो y की वैल्यू विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0. y भी 0 के इक्वल होगा. now substituting here, dy by dx is equal to cos square a plus y की जगह हम we are putting 0 here because we have found out when x is equal to 0, y will also be equal to 0. हमने इन steps में we have found out. तो dy by dx will be equal to cos square a by cos a, which is equal to cos a. आप देखेंगे ये हम cos a के इक्वल लिख सकते हैं बिकॉज कैंसिल हो जाएगा एक cos a. ओके, सेकेंड पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, differentiate tan inverse x root tan inverse 1 by root 1 plus x square minus 1 by x with respect to this. बेसिकली आपको क्या है, आप इफ आई टेक दिस एज u, मैं इसे u ले लूं और इस फंक्शन को v ले लेती हूं, ठीक है. तो आई हैव टू फाइंड आउट, मुझे किसके फाइंड आउट करना है, डी यू बाई डी वी फाइंड आउट करना है. आई हैव टू फाइंड आउट डी यू बाई डी वी. अब इसको फाइंड आउट करने के लिए मुझे आई हैव टू differentiate this with respect to x and differentiate with this v with respect to x. मुझे differentiate करना पड़ेगा. now आपको मैंने बोला है कि पहले functions को simple बना लीजिए. now whenever we did inverse trigo, I told you whenever the function is in the form of root 1 plus x square, तो आप x क्या substitute करें, tan theta के equal substitute करें. तो इधर भी let me find out the simple function by taking x is equal to tan theta, because इससे क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर रूट में से बाहर निकल जाएगा. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा. sec थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा. ठीक है, अब आप इसको फर्दर सॉल्व करिए. यू फर्दर सॉल्व इट. आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 बाय cos sin बाय cos. u is equal to tan inverse 1 minus cos by cos into cos by sin. आपको ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए you should remember all those trigonometric identities which you did in class 11 chapter 3. tan inverse 1 minus cos theta by sin theta. आप देखिए इसको सॉल्व करिए. This is equal to what? 2 sin square theta by 2. Cancel.
तो tan इनवर्स sin थीटा बाय 2 बाय cos थीटा बाय 2. तो tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, दिस इज इक्वल टू व्हाट, थीटा बाय 2. आपकी वैल्यू थीटा बाय 2 आ गई है. तो आपका u इज इक्वल टू थीटा बाय 2. आपका u थीटा बाय 2 आ गया है. तो u कैन यू राइट दिस एज थीटा का वैल्यू यू मे राइट इट एज हेयर tan इनवर्स x. अगर x tan थीटा है तो थीटा इज गोइंग टू बी tan इनवर्स x. तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं. अब डेरिवेट करिए du by dx. हाफ, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? वी हैव डायरेक्ट फॉर्मूला d by dx of tan inverse x is what? 1 by 1 plus x square. ठीक है, तो du by dx आपका ये आ गया है. नाउ लेट मी फाइंड dv by dx. मुझे dv by dx फाइंड आउट करना है. ठीक है, v is equal to sin inverse 2x 1 plus x square. अगेन सिंप्लीफाई द फंक्शन. इसमें भी आप x tan थीटा करिए. v is equal to sin inverse 2 tan थीटा. इसको ये आपके पास इफ यू नो ये sin 2 थीटा के इक्वल होता है. बट अगर आपको नहीं भी पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा है. मैंने tan थीटा को sin थीटा बाय cos थीटा है. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के इक्वल है. those who know we have the direct identity. This is equal to sin 2 theta. 2 tan theta by 1 plus tan square theta is equal to sin 2 theta. लेकिन आप डायरेक्टली नहीं पता है तो you solve it further. 2 sin by cos sec square का cos square हो जाएगा. तो this is going to be equal to sin inverse sin 2 theta. So v is equal to 2 theta. Now let us substitute the value of theta here. Theta is going to be equal to 2 tan inverse x. थीटा यहाँ से देखिए, थीटा क्या है? tan inverse x. अब आपको dv by dx you have to find out. आपको dv by dx आपको find out करना है. ये हमारा u था, ये हमारा v था. हमें du by dv फाइंड आउट करना है क्योंकि हमें डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस करना है. du by dv. तो फर्दर मैंने क्या किया, पहले इसको सिंप्लीफाई किया इस फंक्शन को, फिर इसको सिंप्लीफाई किया. अब नाउ आई एम गोइंग टू डेरिवेट. तो पहले dv by dx विल फाइंड आउट क्या आया है. v आपका 2 tan inverse x है. तो dv by dx is going to be what? 2 into 1. ये आ जाएगा because we know that d by dx of tan inverse x मेरा ये होता है. अब let us find out du by dv. du by dv find out करें. You know that du by dx divided by dv by dx. आपका du by dx क्या आया है? It is half into 1 by 1 plus x square. ये क्या है? 2 into 1 by 1 plus x square. इसको सॉल्व करेंगे. हाफ this is going to get cancelled. It is going to be equal to 1 by 4. So du by dv will be equal to 1 by 4. Next question. Y is equal to sin inverse sxx minus 4 root 1 minus 4x square by 5. आप देख रहे होंगे ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस मैंने ऐसे दिए हैं जहाँ पे फंक्शन को वी हैव टू मॉडिफाई, हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा. बिकॉज
क्या है, बाय दिस टाइम आपको सिंपल डेरिवेटिव्स तो आते होते हैं. ओनली प्रॉब्लम कम्स इन सच क्वेश्चंस वेयर यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. फंक्शन को सिंपल बनाना होता है, तो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ी सी दिक्कत आती है. तो लेट अस अंडरस्टैंड कैसे इस फंक्शन को सिंपल बनाना है. थोड़ा थोड़ा तो अब आइडिया हो गया होगा कि मैं बेसिकली आई ट्राई कि वी शुड गेट रिड ऑफ दिस स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट अब कैसे करें? अगर स्क्वायर रूट 2x को मैं साइन थीटा ले लेती हूँ, इफ आई पुट टेक 2x एज साइन थीटा, तो ये कैसे हो जाएगा? y इन साइन इनवर्स 2x इंटू 3, 6x क्या हो जाएगा? 2x इंटू 3 हो जाएगा, -4, 1 माइनस 2x होल स्क्वायर. y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x किसके इक्वल है? साइन थीटा थ्री साइन थीटा -4, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर. स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर इज गोइंग टू बी कॉस थीटा. अब लेट अस सेपरेट द टर्म्स. अब इस 3/5 और 4/5 का हमको करना क्या है, प्लीज अंडरस्टैंड. अगर इफ आई टेक, let us suppose that cos alpha is 3/5, I'm assuming. अभी आपको क्लियर हो जाएगा क्यों एज्यूम कर रहे हैं, बिकॉज इस 4/5 से क्लियर हो जाता है. जैसे अगर ये अल्फा है, यू नो दैट cos अल्फा इज बेसिकली व्हाट? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है. ठीक है, लेट मी फाइंड द परपेंडिकुलर हेयर बाय पाइथागोरस. ये रेशियो है, तो लेट मी टेक दिस एज 3k एंड 5k. तो बाय ए बी बाय पाइथागोरस विल कम आउट टू बी 4k आ जाएगी. तो साइन अल्फा इज गोइंग टू बी व्हाट? 4/5. परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है 4k/5k, दैट इज 4/5. तो देखिए, अगर मैं ये कॉस अल्फा लेती हूँ तो ये साइन अल्फा हो जाता है. ऐसा करने से क्या है, मेरा फंक्शन सिंपल बन रहा है. जैसे साइन इनवर्स कॉस अल्फा साइन थीटा माइनस साइन अल्फा कॉस थीटा. साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसके इक्वल हो जाएगा बताइए? ये अपने आइडेंटिटी की है, साइन ए माइनस बी. ए माइनस बी के इक्वल हो जाएगा. हेयर ए इज व्हाट? थीटा. ए हमारा थीटा है, बी हमारा अल्फा है. थीटा माइनस अल्फा, तो दिस इज इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा. साइन इनवर्स ऑफ साइन क्या होता है? थीटा माइनस अल्फा. अब थीटा की वैल्यू इज व्हाट? प्लीज देखिए यहां से थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन इनवर्स 2x और अल्फा की वैल्यू क्या होगी? कॉस इनवर्स 3/5, और यू मे टेक इट एज साइन इनवर्स 4/5. कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज कांस्टेंट है. यहां से अल्फा की वैल्यू देखिए, कॉस इनवर्स 3/5. अब हमारा ये क्या है? दिस इज आर y नाउ. बहुत सिंपल कर दिया हमने. लेट अस डेरिवेट. dy/dx क्या होगा? साइन इनवर्स का डेरिवेटिव. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x? 1/√1 माइनस 2x होल स्क्वायर. और 2x का डेरिवेट करेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा, और इसको डेरिवेट करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी 0 बिकॉज कांस्टेंट है. 2/√1 माइनस 4x स्क्वायर. दिस इज द आंसर. तो सिंपल करना फंक्शन को, देन डेरिवेट इन सच क्वेश्चंस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन.
Okay, coming to the next question, show that the function fx is equal to x plus 1 modulus plus x minus 1 modulus for all x belonging to real numbers is not differentiable at points x is equal to minus 1 and x is equal to 1. चलिए हमारे पास फंक्शन ये है, but let us understand this function with the help of graph. पहले तो फंक्शन को समझते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं. ठीक है, अब फंक्शन जो है, इफ यूल अंडरस्टैंड द ग्राफ, मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है? वी शेप्ड ग्राफ होता है. ये कहाँ पे जीरो होगा? -1 पे जीरो होगा. उसके इस तरह होता है. इधर आपकी वैल्यू क्या होती है? फंक्शन नेगेटिव में होता है, इधर पॉजिटिव में होता है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अगर मैं इस फंक्शन को, इफ आई ड्रॉ दिस फंक्शन मॉड्यूलस x माइनस 1, मॉड्यूलस x माइनस 1 को मैं ड्रॉ करूं, ये 1 पे जीरो होता है, उसके इधर ये नेगेटिव होता है, उधर लेफ्ट हैंड साइड ये नेगेटिव होता है, राइट हैंड साइड ये पॉजिटिव होता है. इट इज अ वी शेप्ड ग्राफ. अगेन, अब इस फंक्शन को, इफ आई राइट दिस फंक्शन, पहले मैं इसकी वर्किंग ऑपरेशंस लिखूं. आप देख रहे हैं नंबर लाइन क्या हो रही है? एक तो -1 से छोटी हो रही है. -1 क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे जीरो हो रहा है? -1. इंटरवल्स क्या बन रहे हैं? एक तो -1 से छोटा, एक -1 to 1, 1 to infinity, ऐसा इंटरवल बन रहा है. लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x इज लेस देन -1. ये भी नेगेटिव है, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव. दिस फंक्शन इज नेगेटिव, x प्लस 1, इसका भी नेगेटिव वैल्यू है, इसका भी नेगेटिव वैल्यू है. तो -x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू -2x. तो आपका x लेस देन -1 है, तो आपका फंक्शन का वैल्यू -2x है. ठीक है, अब चलते हैं, फाइंड आउट करते हैं इस इंटरवल में, -1 से 1 तक के इंटरवल में, व्हेन x इज फ्रॉम -1 to 1. ठीक है, -1 से बड़ा x का वैल्यू क्या होता है? x प्लस 1 होता है. लेकिन दूसरा इस इंटरवल में जो ग्रीन वाला ग्राफ देख रहे होंगे आप, ये नेगेटिव है. ठीक है, यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आप इसे सॉल्व करिए. दिस इज इक्वल टू 2. तो आप इसका वर्किंग ऑपरेशन देखेंगे, फंक्शन की वैल्यू फ्रॉम -1 to 1 विल बी इक्वल टू 2. ठीक है, अब इसको फिर से 1 से ग्रेटर देखते हैं. व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस फंक्शन इज पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव. तो दोनों की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी फंक्शन की. इसको सॉल्व करेंगे 2x. तो हमारा फंक्शन व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू व्हाट? 2x. तो लेट अस राइट दिस फंक्शन. ये वर्किंग ऑपरेशंस है, इसको करके दिखाना होता है. लेट अस राइट द फंक्शन इन ए सिंपल वे, जैसे हमने नंबर लाइन में डिफाइन किया. fx इज इक्वल टू व्हाट? -2x व्हेन x is less than equal to less than -1. It is equal to 2 when x is greater than when x is from -1 to 1, और ये 2x के इक्वल है when x is greater than equal to 1. ठीक है, अब हमको चेक करना है whether this is differentiable at x is equal to -1. ये differentiable है या नहीं है. ठीक है, चेक करने के लिए एट x इज इक्वल टू -1, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं. आपको पता है जब भी हमें चेक करना होता है, वी फाइंड आउट रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज क्या होता है? फंक्शन से लेफ्ट हैंड साइड में रेट ऑफ चेंज क्या होगा? इस तरह होगा.
ठीक है, फंक्शन की वैल्यू एट -1 -h पे, फंक्शन की वैल्यू -1 पे, और नीचे इन दोनों का रेट ऑफ चेंज, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस। अब लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अब फंक्शन की वैल्यू एट -1 -h, -1 से छोटा, -1 से छोटा, -1 से छोटा फंक्शन की वैल्यू क्या है, -2x, ये फंक्शन की वैल्यू होगी। f of x is -2x when function is less than -1, तो f of -1 -h क्या होगा, सब्सटीट्यूट द वैल्यू, x की जगह ये पुट करिए, ठीक है। f of -1 क्या है, यहाँ से देखिए प्लीज, f of -1 क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू -1, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो लेट अस सब्सटीट्यूट हेयर, और नीचे -h आएगा, इन दोनों का डिफरेंस हमेशा -h आएगा। तो इसको अब सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी को सॉल्व करते हैं। मैं ये वर्किंग ऑपरेशंस हटा रही हूँ बिकॉज आई हैव रिटन द फंक्शन देयर। तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, 2 + 2h -2 बाय -h, कैंसिल किया, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, 2h बाय -h इज इक्वल टू -2। ये लिमिट सॉल्व करेंगे, दिस इज कमिंग आउट टू बी -2। चलिए अब राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, RHD। तो इसमें क्या करेंगे, h अप्रोचिंग टू 0, -1 के राइट हैंड साइड पे वी आर गोइंग टू टेक स्मॉलर वैल्यू, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, -1 + h इन दोनों का डिफरेंस h होगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, -1 से बड़ी वैल्यू हो तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 है, -1 पे the value of the function at -1 is also 2, which is coming out to be 0, 0 by h is 0, तो लिमिट उसका 0 होगा। As you can see, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन एंड राइट हैंड डिफरेंशिएशन इज नॉट सेम, ये सेम नहीं है, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल at x is equal to -1, at x is equal to -1, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए सिमिलरली हम 1 के लिए चेक करते हैं, हम 1 के लिए चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, 1 से छोटी वैल्यू, -h, 1 से छोटा वैल्यू 1 -h या f 1 -h, फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2। f of 1 पे फंक्शन का वैल्यू इज व्हाट, 2x which is equal to again 2, नीचे -h, so limit h approaching to 0, 0 by h is 0, so left hand differentiability at x is equal to 1 is equal to 0। RHD क्या होगा, लिमिट h approaching to 0, f 1 + h, 1 + h ये क्या है, 2x है, ये वैल्यू होगी 1 + h में, 1 से बड़ा अगर x है तो वैल्यू इज 2x, दैट इज 2 1 + h। f1 क्या है, अगेन 2, when x is greater than equal to 1 the function's value is 2x, 2 into 1, ठीक है।
तो लिमिट क्या होगी, लिमिट टू 1 प्लस एच विच इज इक्वल टू 2। तो इसका 2 वैल्यू आएगा। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन से वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0, राइट हैंड डेरिवेटिव इज 2, तो दोनों इक्वल नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल at x is equal to -1 and 1. Is that clear? ये differentiable नहीं है at x is equal to -1 and 1. ठीक है, with this I'll wind up. Thank you very much.